Now, dear students, today we will discuss about equipotential surface. According to name, we know that equipotential means equal potential. The imaginary surface around any charge which has same magnitude of potential is known as equipotential surface. Equipotential means equal potential. Then imaginary surfaces are virtual surfaces which has equal potential at each point of that surface is known as equipotential surface. Since potential is same at everywhere on this surface, then potential difference between 2 points of this surface will be 0, because potential is same at each point of this surface. Then when we find out potential difference between 2 points, then we get 0. It means if any charge is moving on this surface, then no work is done by external force, or no work is required to move any test charge on this surface, because amount of work done will be 0 due to same potential, because amount of work done is required due to potential difference, and potential difference is created due to different intensity of electric field. Since intensity of electric field is also same and potential is also same, so when we move any charge on this surface, then work is done, no work is done on this work, on this action. तो ऐसा सरफेस, ऐसा इमेजिनरी या वर्चुअल सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, और जिस पर किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस करने में किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं करना होता, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है. इसे हम इक्विपोटेंशियल्स भी कहते हैं. इक्विपोटेंशियल को इसका नाउन बना दे तो इक्विपोटेंशियल्स मीन्स, और जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी कंडक्टर्स हैं, सिंस when we give charge on any conductor, then total charge is equally distributed on the surface of that conductor. Due to this reason, intensity of electric field and potential has same in magnitude on the surface of conductor. So surface of each conductor is behave like a इक्विपोटेंशियल सरफेस. एक पॉइंट चार्ज के कारण देखें, व्हेन वी टेक ए पॉइंट चार्ज देन एंड ड्रा concentric sphere, we get on each concentric sphere is equidistant from the center. Since it is equidistant from the center, then intensity of electric field will be also seen on these surfaces, and potential is also in same magnitude on these spheres. Then concentric sphere around any point charge behaves like equipotential surface or equipotentials. कहने का आशय यह है कि किसी भी चार्ज के चारों ओर यदि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर खींचे जाए तो वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, क्योंकि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है और जिसके कारण उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो उस पर क्या होगा, पोटेंशियल भी सेम होगा. सेकंड थिंग
characteristics are properties of equipotential surfaces. First characteristics, properties of equipotential surface. No work done is required to move any charge over equipotential surface. No work done is required to move any test charge on this surface. Since potential is same on each point, so potential difference between 2 points will be 0, and while W is equal to चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला निकाला था, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. सो amount of work done will be equal to magnitude of charge into potential difference. Since each point of equipotential surface has same magnitude of potential. चूंकि आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके सारे पॉइंट्स पर मैग्नीट्यूड सेम होता है, और जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच का 0 होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज into potential difference. Since potential difference is 0, and when we multiply by 0 then we get 0. So amount of work done, no work is done to move any test charge or any charge on the equipotential surface. First property, no work is done to move any charge on the surface of equipotentials. तो इक्विपोटेंशियल्स के सरफेस पर किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना होता. सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट. इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड उनके रेडियल डायरेक्शन में होती है, और रेडियल डायरेक्शन में होने के कारण ये परपेंडिकुलर होती है. तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन परपेंडिकुलर होती है या उस सरफेस पर खींचे गए नॉर्मल के डायरेक्शन में होती है. यदि ऐसा नहीं हो, सपोज इक्विपोटेंशियल direction of electric field is not perpendicular to the equipotential surfaces, then its any component will be in the direction of surface. And so when we move any test charge against this force, then work is required. But we already say this, no work is done to move any test charge on the surface of equipotential. तो चूंकि हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में होगी. यदि ऐसा नहीं होता, या जो आपका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यदि वो कोई पर्टिकुलर एंगल पर होता, 90 डिग्री पर ना होकर, तो ऐसी स्थिति में उसके जब हम परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट्स करते तो कोई ना कोई कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होता. और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता, जब उसके अगेंस्ट हम वर्क करते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज को ले जाते, तो उसके अगेंस्ट वर्क होता, और उसके अगेंस्ट जब वर्क होता तो हमें क्या करना पड़ता, हम डिस्प्लेस करते तो हमें वर्क करना होता. माने वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू मूव
in that condition, but no work is done to move any test charge from on into or on the surface of इक्विपोटेंशियल्स। तो यहां पर सेकेंड प्रॉपर्टीज होगी। थर्ड प्रॉपर्टीज, इक्विपोटेंशियल surfaces are closer together in the regions of strong field and further apart in the regions of weak field। जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो जहां पर स्ट्रॉन्गर फील्ड होती है वहां पर क्लोजर होते हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रेयरर होती जाती है वैसे वैसे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो डिस्टेंस अवे होते जाते हैं। मतलब यदि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो बहुत डेंस होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, ये मैंने इन्वर्स लॉ को फॉलो करने वाले फोर्स हैं, और जब इन्वर्स लॉ को फोर्स फॉलो करते हैं तो इसका असर है कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डिक्रीज, एंड व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज सो it will be rarer and equipotential surface will be also drawn at distance। माने जैसे हम क्या कह रहे हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होंगे नीरर होंगे, और जैसे जैसे माने वीकर फील्ड आएगी वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रिक माने जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो डिस्टेंस पे आते जाएंगे। तो हम देख के बता सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यदि कहीं शो किए गए हैं किसी शेप में तो हम उन्हें देखकर, चूंकि सारे शेप्स पैरेलल होते हैं, वो कर्वेचर हो, यदि हम स्फीयर भी ड्रा कर रहे हैं तो स्फीयर ऑल आर कॉन्सेंट्रिक तो दे विल बी पैरेलल, बट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ये कर्व हैं लेकिन ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसी चीज को हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है रेयरर होते जाएगा। तो हम इसको देख के भी बता सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में है कि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के नीरर 1 2 3 है, उसके बाद 4 इससे और डिस्टेंस पे आया, 5th इससे काफी डिस्टेंस पे आया, और 6th इक्विपोटेंशियल सरफेस और डिस्टेंस पे आ गया, माने इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ते जाता है। तो यही चीज है थर्ड प्रॉपर्टी। और साथ ही क्या है कि सिंस E is equal to minus dV upon dr, or when dV is constant, when V is constant, so dr is inversely proportional to intensity of electric field। तो dr जो है change the variation of radius is direction is inversely proportional to 1 upon E। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होगी, और इंटेंसिटी कम होने पर पोटेंशियल यदि रिजिड है तो ये डिस्टेंस पर आते जाएंगे। फोर्थ, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे इंटरसेक्ट then intersecting point, at intersecting point we get two direction of potential which can not be possible। So two equipotential surface cannot intersect each other, क्योंकि यदि वे इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर टू डायरेक्शंस प्राप्त होते हैं, और ऐसी कंडीशन में एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल के टू डायरेक्शंस होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का यही जो इंपॉर्टेंस है कि वो न केवल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है कि यदि जहां पर डेंस है वहां हम समझ जाते हैं कि यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग, और जहां पर रेयर है वहां हम समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। सेकेंड थिंग, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को शो करते हैं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का इंपॉर्टेंस है। दो इंपॉर्टेंस जो मैं बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करते हैं, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं, जो हम डायग्राम देख के भी बता सकते हैं।
ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर टू डायरेक्शंस होंगे, और टू डायरेक्शंस में पोटेंशियल के एक ही पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ, द इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग मेटल इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मैं बता चुका हूं। और नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये देखो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि इंटेंसिटी अधिक है तो यहां पर आपका जो है पोटेंशियल वो ग्रेटर होगा। इस पॉइंट पर हम जाएं तो यहां पर आपका V1 ले लें, ये V2 ले लें, ये V3 ले लें, ये V4 ले लें, तो V1 is greater than V2, V2 is greater than V3, V3 is greater than V4। यहाँ पर सेपरेट स्फीयर्स जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सेपरेट जो स्फीयर्स हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान रखना। लेकिन अलग अलग स्फीयर जो है, यदि हमें एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर जाना हो तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंज्ड। अब तो इसका मतलब है कि V1 नियरर में क्या होता है, ग्रेटर है, और जैसे जैसे हम उससे दूर आते हैं ये क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ये निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर दिख ही रही हैं सरफेस पर। और दूसरी चीज की इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज। अब शेप्स, इक्विपोटेंशियल शेप्स बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे स्फीयर है, पॉइंट चार्ज के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इसी तरह से यदि किसी लाइन चार्ज हो, लाइन चार्ज के चारों ओर उसको मेन एक्सेस मानकर खींचे गए जितने भी सिलेंडर होंगे वो इक्विडिस्टेंस होंगे, और इक्विडिस्टेंस होंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, एंड व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम ऑन ईच पॉइंट ऑफ सिलेंडर, देन पोटेंशियल विल बी आल्सो सेम ऑन ईच पॉइंट ऑफ दैट सरफेस। तो ये पूरे के पूरे एक्सेस मान खींचे जाए तो इधर मिरर रहेंगे, और इसका धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ते जाएगी, और ये इन रेडियस के जो आपके वो बन रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक एक सर्किल है, और प्रत्येक सर्किल क्या होता है, किससे दूर होता है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर होता है, और इक्वी डिस्टेंस पर है। तो ये सेकंड शेप हो गया, ये स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया। अब ये सिंगल चार्ज था, मैंने स्केच करने भी दिया है इसमें। तो सेकंड कि इफ वी हैव ए डायपोल, मीन्स यदि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या बनेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मैंने यहां बनाए हैं। चूंकि यहां पर क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहां फील्ड हो जाएगी डेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस हो जाएगी, और इस तरफ दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड रेयर हो जाएगी। चूंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों की पावर लगी है, तो यहां पर मैक्सिमम पावर होने के कारण, स्ट्रेंथ होने के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस हो जाएगी, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस हो जाएगी, और दोनों अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, रेयर हो जाएगी। तो आप देखो पहला सर्किल, दूसरा, ये क्लोजर है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं ये किसके क्लोजर है, जहां स्ट्रॉन्ग है फील्ड वहां क्लोजर है, और जहां रेयर है वहां बढ़ते गई डिस्टेंस। इसी तरह से इसमें भी ये डिस्टेंस बढ़ते गई। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स तो डायपोल की आपको बनाने आती ही है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ये पॉजिटिव है, इससे होकर जाएंगी, और ये नेगेटिव है तो इससे अंदर की ओर आएंगी। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना। तीसरा, यदि दो सेम आर लाइक चार्जेस is placed at a particular distance, at a definite distance, then what will be equipotential surface।
यदि 2 पॉइंट चार्जेस को एक कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखा जाए तब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? तो ये क्या होगा, जब 2 होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को वीकर कर देगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर हो जाएगी तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो डिस्टेंस पर है, मिरर में बहुत क्लोज है, और दूसरे साइड में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर डिस्टेंसेस यदि आप देखोगे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनकी कम है और इस ओर बढ़ गई। इस तरह से ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में और चाह रहा था इसमें डिस्कस करना, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर एंड स्टेट हाउ डू दे अफेक्ट। किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल एक इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट दोनों में। पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट मैंने दोनों में ही यूज होता है, वो फिजिकल टर्म है। अब मैं कह रहा हूं कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का या कंडक्टर का के पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले या प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं और क्या है, उनको किस तरह से वो वर्क करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करो। तो यहां मैंने पॉइंट आउट किए हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट, डिपेंडेंस ऑन द चार्ज ऑफ कंडक्टर। सिंस वी नो दैट V is equal to 1/4 pi epsilon naught k into Q upon R. It means if R and K is constant, so V proportional to Q. It means if the increased charge, V proportional electric potential of a conductor is directly proportional to charge. When we increase magnitude of charge on any conductor, then intensity of electric field is also increased. When we increase the magnitude of charge on any conductor, then intensity of electric field is also increased around that conductor. And when intensity of electric field is increased, then since E is directly proportional to V, जितना E बढ़ेगा उतना V भी इंक्रीज होगा। जितना भी बढ़े इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, V भी इंक्रीज होगा। तो V को भी ये क्या कर देगा, इंक्रीज, माने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स टू मूव एनी टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, टू मूव एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल बी आल्सो इंक्रीज्ड। जो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस करने के लिए लगता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज आल्सो इंक्रीज्ड। फिर से सुनना ध्यान से, जब हम किसी कंडक्टर पर चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने पर उसके चारों ओर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमें किसी चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, जो हम एक्सटर्नल फोर्स चार्ज को, माने टेस्टिंग चार्ज को मूव करने के लिए अप्लाई कर रहे थे, उसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू Q इंटू E, E इज इंक्रीज, सो F इज आल्सो इंक्रीज। When F is increased, then amount of work done against the force is also increased, because it is always equal to applied repulsive force. Then amount of work done is also increased, and when amount of work done is increased, so electric potential is also increased. First point. Second, dependence on the size of a conductor. Since all charges lies on the surface of any conductor, we know that total charges of
total given charges of any conductor lies on the surface of conductor, and when we increase the size of any conductor, then its surface is also increased, and when surface is increased, then तो कैपेसिटी, उसकी जो कैपेसिटी है चार्ज गेन करने की, द कैपेसिटी टू गेन चार्ज इज आल्सो इंक्रीज। और जब कैपेसिटी चार्ज की इंक्रीज होगी, जैसे ही हम साइज को इंक्रीज करेंगे, यदि चार्ज को कांस्टेंट रख के साइज को इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी मतलब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस पे, तो चार्ज कम होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने पर एरिया यदि बढ़ा दिया गया, सरफेस बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा, उससे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज। और जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डिक्रीज, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो गया, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा तो हमें उसके अगेंस्ट काम करने में, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू काम करने के लिए भी रिक्वायर्ड फोर्स कम लगेगा, और जब रिक्वायर्ड फोर्स कम लगेगा तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अर्थात किसी के साइज को, चार्ज को कांस्टेंट रखते के यदि साइज को बढ़ाया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और यदि हम रिड्यूस कर देते हैं साइज को तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, डिपेंडेंस ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। यदि व्हेन एनी अदर कंडक्टर इज, when any other uncharged conductor is placed near the charged conductor, then यदि हम रख देते हैं तो क्या होगा, अनचार्ज कंडक्टर रखते तो ऐसी कंडीशन में अनचार्ज कंडक्टर में क्या होता है कि वो टेम्पररी उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस डायरेक्शन में आके उसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगी, और जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिड्यूस, देन पोटेंशियल इज आल्सो डिक्रीज। तो जैसे ही किसी चार्ज कंडक्टर के आसपास अनचार्ज कंडक्टर रखा जाता है तो अनचार्ज कंडक्टर, वो सब ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अनचार्ज कंडक्टर में प्रेरण के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यदि ये पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव जब आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीकर हो जाती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी तो ऐसी कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर हो जाएगी तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ, डिपेंडेंस ऑन द मीडियम अराउंड द कंडक्टर। वी नो दैट V is inversely proportional to 1/k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो यदि किसी कंडक्टर के चारों ओर का जो मीडियम है उसे चेंज कर दिया जाए, जो चारों तरफ का मीडियम है उसे हम क्या कर दें कि वैक्यूम या एयर के प्लेस पर हम उसके स्थान पर किसे रख दें, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें। और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट k है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k, तो V इज डिक्रीज्ड 1/k टाइम्स, देन V इज डिक्रीज्ड 1/k टाइम्स। सिंपल सा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे हम मैंने वैक्यूम या उसमें चल रहे हैं, हवा में जो है, जब हम सड़कों पे चलते हैं एयर की प्रेजेंस में चलते हैं, लेकिन जब हम पानी में चलना होता है, जब हमें पानी में चलना होता है या किसी अन्य माध्यम में चलना होता है तो हमारी स्पीड क्या होती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि मीडियम डेंस है। हम पानी घुटने पानी में चल रहे हैं या जांग में पानी में चल रहे हैं तो हम उस स्पीड से नहीं चल सकते, तो हमारी इंटेंसिटी क्या हो, कम हुई। व्हेन आवर इंटेंसिटी इज डिक्रीज्ड देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज आल्सो डिक्रीज। तो वर्क डन कम हुआ
तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/k टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर इसमें हो गए। मैं नोट्स तो भेजूंगा ही। थैंक्स।